السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ہما دورانی اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اے اللہ، خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئیں، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ اور آغاز میں آپ کو بتائیں گے، وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ اے پی سی ہوتے نہیں دیکھ رہا، اپوزیشن کی اے پی سی ان کے ہی گلے پڑ سکتی ہے، دونوں پارٹیاں این آر او کی تلاش میں ہیں، عمران خان این آر او نہیں دیں گے۔ پارٹیاں این آر او کی تلاش میں ہیں، عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو این آر او نہیں دے گا۔ جو آگے ہی پچھتا رہا ہے جو نواز شریف چلا گیا۔ نواز شریف اتنا بولا نہیں ہے کہ شہباز شریف والی وہ غلطی کرے گا۔ شہباز شریف کی ایک قربانی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ مردہ اپوزیشن عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اگر نکلے گی بھی تو تھکے گی اور تھک جائے گی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے نون لیگ کے رہنماؤں کی خوب کلاس لی۔ کہتے ہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں نواز شریف کوئی بیمار نہیں ہے، لندن کے ہوٹلز میں کافی پیتے پھر رہے ہیں۔ بولے ساری اپوزیشن سمیت آپا، پاپا اور چاچا کا درد ایک ہی ہے۔ ان کا درد ہے کہ ان کے خلاف کیس بند ہو۔ جعلی ٹیسٹ میں کون کون ملوث تھا، فواد چودھری نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر کے اب ان کی اپنی فیملی کو بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہٹے کٹے ہیں، الحمدللہ، اور اچھی بات ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ ہم سب بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا گو ہیں کہ اللہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ صحت دے۔ اب صرف دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب تو نواز شریف ظاہر لندن میں پھر رہے ہیں، کافیاں پی رہے ہیں، اور ایک سیاست اور ہو رہی ہے، آپا اور پاپا چاچا کی سیاست کو بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اور تو کچھ نہیں ہو رہا نا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو نواز شریف صاحب اب الحمدللہ ٹھیک ہے اور ان کی صحت ٹھیک ہے، کیا جاتے ہوئے بھی اتنی خراب تھی؟ لگ رہا ہے نہیں تھی۔ کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ جو ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں پہ اترے ہیں وہ تو بالکل 20 سال کے جوان بن گئے، اور ان کی جو رپورٹس ہیں جب یہاں ہائی کورٹ نے مانگی، پنجاب والوں نے مانگی، انہوں نے نہیں دے سکے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رپورٹس یہاں پہ تھی وہ جعلی تھی۔ اور اب کل جب ہم نے یہ مدعا اٹھایا پی ایم صاحب کے ساتھ تو انہوں نے اس کے اوپر ایگری کیا ہے، اور اب پنجاب حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ پروب کرے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 467 اور 468 ہے اس کے تحت یہ فراڈ ہے، اور اس میں منیمم سزا 10 سال ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کون کون پکڑا جاتا ہے۔ شہباز شریف خاندان کی مشکلات پھر بڑھنے لگی۔ نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سلمان شہباز کو پاکستان لانے کا فیصلہ کر لیا۔ نیب العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی عدالت سے رجوع کرے گی۔ سابق وزیر اعظم کو توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دلوانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف کی طلبی کے لیے دفتر خارجہ کے ذریعے برطانیہ سے رابطے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی نواز شریف کے مفرور ہونے سے آگاہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ نیب حکام کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ضمانت ختم ہو چکی ہے، وہ مفرور، ملزم اور مجرم ہے۔ بارش برس کر چلی گئی، کراچی ابھی تک ڈوب رہا ہے۔ سرجانی ٹاؤن، ملیر فرنگی سمیت کئی علاقے پانی پانی ہو گئے، گلیاں ندیوں میں تبدیل ہو چکی، جبکہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ پانی پر تیرتا کچرا اور گندگی انتظامیہ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈوبتے کراچی کے شہری بے یار و مددگار، کوئی پکار پر نہ آیا۔ کراچی ایک بار پھر پانی پانی، وعدے، دعوے، نعرے، طوفانی بارش سب بہا لے گئی۔ چھاجو چھاج برستی بارش نے محکمہ بلدیات کی نااہلی کا پول کھول دیا۔ بارش کے بعد ضلع وسطی اور غربی کا حال بے حال ہو گیا۔ سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔
मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होते ही कई फीट तक पानी भर गया। शहरी ट्रैफिक में फंस गए, गाड़ियां बंद हो गईं, गलियां सड़कें जहड़ का मंजर पेश करने लगी, गाड़ियां भी पानी में कश्ती की तरह तैरने लगी। शदीद बारिश के बाद सुरजानी टाउन, नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलबर्ग, औरंगी टाउन, यूसुफ कोट, गदाफ टाउन, सोहराब कोट समेत दीगर इलाके शदीद मुतासर हुए। मेमन गोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जान से गए। बारिश के बाद शहर में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में 2 मोटरसाइकिल सवार नाले में जा गिरे। नॉर्थ नाजिमाबाद शादमान टाउन में नाले भी भर गए। बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहराह पाकिस्तान और राशिद महनास रोड समेत दीगर इलाकों में कई घंटों तक शहरी फंसे रहे। महकमे मौसमियात ने बारिशों का मौजूदा सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेशगोई की है। पाक फौज कराची के शहरियों की मदद को आ गई। जवान शहरों पर पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की मदद में मौसूफ हैं। आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। पाक फौज की टीम्स इंतजामिया के साथ मुतासरा इलाकों में बारिश के पानी को निकालने में मसरूफ हैं। कराची के नशेबी इलाकों से निकासी आब का काम जारी है। पाक आर्मी के जवान सरजानी टाउन सेक्टर 4B और यूसुफ कोट में भी मदद को पहुंचे। बिस्मिल्लाह स्टॉक, न्यू कराची, लासी गोट, यूसुफ कोट के इलाकों से भी पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। शहरियों ने जवानों की आमद पर पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। शहरियों का कहना था कि जब भी कोई मुश्किल आती है पाक फौज ही हमारी मदद को आती है। शहर कायद के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कहीं 10 तो कहीं 12 घंटे तक इलाकों में 15 से 18 घंटे तक बिजली बंद है, जिसकी वजह से शहरी अजाब में मुब्तला है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद न हो सका। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बारिश का जवाज बनाकर तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से दिन का सुकून बर्बाद है तो रात की नींदें हराम हो गई हैं। हमारे साथ क्या तुम लोग कर रहे हो, कौन सा खेल खेल रहे हो? हम बिल्कुल जलील हो गए, जलील ख्वार हो गए। सारा दिन लाइट नहीं, बच्चे बेजार हो गए हमारे। लाइट ना होने के बराबर है। यहाँ लाइट होनी तो चाहे होती नहीं है। यहाँ पर सुबह जब भी नहीं है, रात भर नहीं है। जब भी घर आओ लाइट होती नहीं है। अभी खाना खाने घर पे आऊँ मैं, सुबह से लाइट गई भी अभी तक नहीं आई है। शहरियों का मजीद कहना था कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बच्चे बड़े सब ही सख्त अजियत का शिकार हैं। छोटे बच्चे हैं, गर्मी का आप मौसम देख रहे हैं, कुछ भी यानी वो नहीं है। अभी देखें बच्चा बिल्कुल यानी एक बच्चा और है, तबीयत उसकी खराब है, गर्मी है, तो उसको बोला गया कि उसको थोड़ा ठंड में रखिए, मगर क्या कि कोई वो यानी पुरसाने हाल नहीं है। लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, मलीर, लियाकताबाद, सरजानी, कस्बा कॉलोनी, लांडी, कायदाबाद, कोरंगी, करीमाबाद और बनारस शामिल हैं। अशरफ सोलंगी, सच टीवी, कराची। हुकूमत की दुरुस्त और मौसर हिकमत अमली काम कर गई। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 10,626 रह गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 586 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 12 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना का जोर टूट गया। केसेस और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। मोहलिक वायरस ने 12 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,231 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,92,174 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 586 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 96,057, सिंध में 1,27,691, खैबर पख्तूनख्वा में 35,602, बलूचिस्तान में 12,473, गिलगित बल्दिस्तान में 2,638, इस्लामाबाद में 15,472, जबकि आजाद कश्मीर में 2,241 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 24,14,902 अफराद के टेस्ट किए गए। अब तक 2,57,317 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान ने कोरोना लॉकडाउन में बेरोजगार अफराद को कमाने का मौका दिया। आलमी इदारा सेहत ने तमाम ममालिक को खबरदार किया कि कोरोना वायरस 2 साल तक जारी रह सकता है। WHO के सरबराह ने पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दरख्त लगाने की जबरदस्त स्कीम शुरू कर रखी है। सरबराह आलमी इदारा सेहत का कहना था कि पाकिस्तान ने बेरोजगार अफराद को वजीफा देकर शजरकारी की तरगीब दी। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार अफराद को कमाने का मौका दिया गया। उधर आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार किया कि कोरोना वायरस 2 साल तक जारी रह सकता है। अवाम को कोरोना फैलाव रोकने में अहम किरदार अदा करना होगा।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पेशावर में नान बाई एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। शहर भर में पीर के दिन से तमाम दुकानें एहतजाजी तौर पर बंद रखी जाएंगी। मजीद जानते हैं पेशावर से अवैस महमूद से। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ननबाई एसोसिएशन की जानिब से पेशावर में एक बार फिर जो हड़ताल की कॉल है वो दी गई है। पीर के दिन से मुकम्मल जो है वो हड़ताल की जाएगी। दुकानें जो है वो बंद की जाएंगी। हमारे साथ इस वक्त जो ननबाई एसोसिएशन के सदर खाइस्ता गुल हमारे साथ मौजूद है। हम उसी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सर, क्या कहेंगे? आपने एहतजाज भी किया, उसके बावजूद भी जो है वो आपने हड़ताल की कॉल दे दी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? असी उधर गए थे, वो राशन कंट्रोलर भी बैठा है, वो सेक्रेटरी पूट भी बैठा है, डायरेक्टर पूट भी बैठा है। कहते तुहानू आटा देने है तो सस्ता आटा देने है, कल थोड़ा कम बन जासी। कम से कम 3000 बोरी थे हुए ना, उसने कह के साड़ा कोल कुछ भी नहीं गा, इतना बोरी नहीं गा, तुसी सबर करो। सानू कह के उस वक्त तक रेट दे दे, कहते रेट भी नहीं दे सकने। तो फिर सानू यही फैसला किया कि आज अब तो दिन है, कल इतवार है, इतवार तक साढ़े नाल मुज़ाकरात हो जासी, नो हड़ताल न हो सी। अगर न हो गया तो शहर सारा तंदूर बंद हो सी। जी हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि इतवार तक अगर उनके साथ मुज़ाकरात हो गए, डीसी के साथ, इंतजामिया के साथ अगर मुज़ाकरात कामयाब रहे तो हड़ताल जो है वो वापस ली जाएगी। जबकि अगर मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो, उसके बाद जो है पूरे पेशावर में, पूरे शहर में जो है इनकी हड़ताल होगी। जी बहुत शुक्रिया अवैस महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद महंगाई कम ना हो सकी। शहरी कहते हैं आए रोज अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। चीनी, टमाटर, चिकन और गोश्त पौंड से बाहर हो गया। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत के 2 साल गुजर गए पर आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। शहरियों का कहना है कि महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर चीज की कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। अवामी नुमाइंदे इक्तदार के मजे ले रहे हैं और अपने वादे भूल गए हैं। गरीब बंदा तू पूरे कर सी, या 1000 रुपए की दिहाड़ लगी तो केड़ी शय पूरी कर सी। महंगाई ज्यादा हो गई थी, महंगाई ने 10 ऊपर चली गई, इतनी बढ़ गई जितनी गुंजाइश तो बाद कम हो गया। महंगाई तो हो गई है, हमें पता है, और अमीर दिन ब दिन अमीर हो रहा है, गरीब तो मरता ही जा रहा है बेचारा। तो ये सही नहीं है, इसको इस पे अमल करना चाहिए कि कीमतें कम करे। दुकानदारों का कहना है कि हमें मंडी से चीजें महंगी मिलती हैं, 5 से 10 रुपए का मुनाफा तो बनता है। हम किराए लगा कर आते हैं, कारोबार ना होने के बराबर है। तो रेट लिस्ट सब कुछ आता है हमारे पास, ठीक है, मंडी से हमें महंगा मिलता है। यहाँ पे हम 10 रुपए केजी के पीछे हमारा प्रॉफिट होता है, इससे ज्यादा हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर ज्यादा प्रॉफिट करेंगे कस्टमर नहीं आएंगे। शहरियों का मजीद कहना था कि हुक्मरानों पर आवाम का एतमाद उठता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां और जिली इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। आलू 80 रुपए, चीनी 100 रुपए और टमाटर फी किलो 60 रुपए बिक रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत के भी 2 साल गुजर गए पर कोई रिलीफ नहीं मिला। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में साबिका दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब किए गए अक्सर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुनासिब देखभाल न होने के बायस खराब हो गए। शहरी कहते हैं मुतालिका हुकाम प्लांट्स की मुरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी। वादी कोयटा में यूं तो अवाम गुज़श्ता कई सालों से पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं, लेकिन साबका दौरी हुकूमत में अवाम को साफ पानी की फराहमी के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खतीर रकम की लागत से जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए गए थे, उनमें अक्सर प्लांट्स मुतलका हुकाम की अदम तवज्जुही और बेहिसी की वजह से खराब या बंद पड़े हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है और शहर में साफ पानी दिन ब दिन नापेद होता जा रहा है। यहाँ पर जो बिल्कुल पानी साफ पानी मैसर नहीं, अक्सर लोग बीमारियों में मुब्तला है। और यहाँ जितने जो प्लांट लगा हुआ है साफ पानी का, कोई भी जगह भी जो है साफ पानी मैसर नहीं। जितने जो वाटर सप्लाई लगे हुए वो जो बड़े बड़े जो टैंकर, वो लोग जो है अपने मन मानिया कर रहे हैं। एक टैंकर जो है 15,000 10,000। अब गरीब लोग क्या करे, हवा में वो बेचारे परेशान है। 5 साल से बंद पड़ा हुआ है प्लांट, पानी नहीं है, पानी बनवा भी सही है, वाटर प्लांट बंद पड़ा हुआ है, 5 साल से बंद पड़ा हुआ है। ना मुलाजिम आ रहा है, ना कोई अफसर आ रहा है। 10 दिन भी नहीं चला, बस खत्म हो गया।
अभी न पानी है, न कोई देखने वाला है, न कोई काम वाला है। क्या आते हैं बर्मे भी बंद होते हैं, बर्मे का भी कोई ऐसा हाल है। पीछे जो है यदि आप देख सकते हैं तालाब बना हुआ है। वाटर प्लांट्स की बंदिश के खिलाफ कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सरापा एहतजाज भी हैं और इस अहम मसले के हल के लिए मुतलका हुक्काम को कई बार तहरीरी तौर पर भी आगाह किया गया है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने के गैर मुतसलसल आज़म का इजहार कर दिया। चीनी सदर ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को खुसूसी खत लिख दिया। चीनी सदर के खत के मतन में कहा गया कि चीन इलाकाई ममालिक में मुश्तरका ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। सदर शी जिनपिंग ने खत में लिखा है कि पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन और तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं। चीन दिगर ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीनी सदर ने लिखा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खुसूसी दर्जे के हामिल हैं। सी पैक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और शराकतदारी की आला मिसाल है। चीनी सदर का कहना था कि दोनों ममालिक की सियासी जमातों के दरमियान दोस्ताना मुशावरत का अमल मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है। इसने पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक की मुस्तहकम और तवील मुद्दती तरक्की और आला मयार के मुस्तहकम किया है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि कोरोना के खिलाफ आलमी कोशिशों ने यह साबित किया कि बाहमी तावन ही इस वबा को शिकस्त देने का वाहिद रास्ता था। गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा था कि वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हमारा मुस्तक़बिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है। मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाले भारतीय फौजी खुद मायूसी का शिकार होने लगे। मकबूजा कश्मीर में 2 और भारतीय फौजियों ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म ढा कर बुज़दिल भारतीय फौजी खुद जहनी मरीज बन गए। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौजियों ने खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार ने खुदकुशी कर ली। दूसरा फौजी जम्मू के जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात था। मोहित कुमार नामी फौजी ने खुद अपनी ही बंदूक से खुद पर फायर किया और एहलकार हो गया, जबकि हलाक होने वाले एहलकारों ने जाए वकुआ पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। और अब जिक्र करबला वालों का, जिन्होंने दीन मोहम्मदी की आबेयारी अपने लहू से की। 2 मुहर्रम की मुनासबत से आज मजालिस सैयदुश्शहदा में काफिला हुसैनी की करबला आमद और सहाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हबीब इब्ने मुजाहिर का जिक्र है। दिल का बढ़ता है दूसरी मुहर्रम से, बेकरार होते हैं लोग शाह के गम से, लब पे आता है नाला फातिमा को पुलसा दो। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और अस्हाब बावफा के गम में फर्श अज़ा मसाइब आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी है। 2 मुहर्रम की मुनासबत से आज मजालिस सैयदुश्शहदा में काफिला हुसैनी की करबला आमद और सहाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हबीब इब्ने मज़ाहिर का जिक्र है। 75 साला हबीब इब्ने मज़ाहिर का ताल्लुक कबीला बनी असद से था। इमाम ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला का मैदान 2 हिस्सों में तकसीम किया। मैसरा को हबीब इब्ने मज़ाहिर और मैमना ज़ुहैर बिन कैन के सुपुर्द किया। परचम हुसैनी और मरकज की जिम्मेदारी हजरत अबुल फजल अब्बास को दे दी गई। हबीब इब्ने मज़ाहिर की कब्र भी मरकद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहलू में है। काफिला हुसैनी 28 रजब 61 हिजरी को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ। हज से पहले काफिला मक्का पहुंचा। फौज यजीद ने खाना काबा में आले रसूल पर हमले की साजिश बनाई, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने खाने खुदा की हुर्मत की खातिर हज को उम्रे में तब्दील किया। ये काफिला 2 मुहर्रम को दश्ते नहनवा पहुंचा। दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बका के लिए इसी जगह हक व बातिल का मार्का 10 मुहर्रम 61 हिजरी को हुआ। इन्हीं शौदा की लाजवाल कुर्बानी की याद का सिलसिला 8 रबीउल अव्वल तक जारी रहता है। शौदाए करबला की कुर्बानी ऐसी नवा बन चुकी है
जो हुर्रियत पसंदों को ता क़यामत हकीकत अबदी का पता देती रहेगी। 3 दिन जो प्यासा था दश्त बेमरवत में, सर कटा दिया जिसने दीन की हिफाजत में, उस हुसैन बेकस का फातिमा को कुर्सा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के हर किरदार को मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ तैयार किया है जो ता क़यामत याद रखे जाएंगे। ऐसा ही एक किरदार हुर इब्न यजीद रियाही का है। ये किरदार कैसे मुनफरिद है, इस रिपोर्ट में जानिए। रहा है अकबर सीने उसे लगाओ। खानवादा रिसालत ने अपनी कुर्बानी से दीन हक का परचम ता क़यामत सर बुलंद कर दिया। 3 मुहर्रम की मुनासिबत से मजालिस बर्पा की जा रही हैं। करबला का हर किरदार मुनफरिद है। हुर बिन रियाही का किरदार शायद सबसे मुख्तलिफ है। हुर दरअसल हक के मतलाशियों का हीरो है। हुर बिन यजीद रियाही इब्ने ज़ियाद के उन 4 कमांडर्स में शामिल था जिन्हें करबला में अपने दस्तों के हमरा भेजा गया। इब्ने ज़ियाद ने हुर इब्ने रियाही को खुरासान की हुकूमत की पेशकश कर रखी थी और शर्त ये रखी थी इमाम हुसैन को कूफा आने से रोको और यजीद की बैत पर राजी करो। ज़ुहज़्म के मकाम पर हुर ने इमाम का रास्ता रोका। उन्होंने कूफा जाने से रोकने का पैगाम पहुंचाया। हुर का लश्कर शदीद प्यासा था, जिस पर इमाम हुसैन ने हुक्म दिया कि हुर के लश्कर को भी पानी पिलाया जाए और उसके घोड़ों को भी। हुर करबला तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पहुंचा और 9 मुहर्रम तक फौज अशकिया में रहा। शबे आशूर ख़याम हुसैनी से बच्चों के रोने की आवाजें हुर और उसके बेटे को बेचैन कर रही थी। हुर ने उमर बिन साद को राउनत और तकब्बुर के साथ अपने सिपाहियों को ये हुक्म देते सुना कि उसके घोड़ों के सुमों पर पानी डालो, गर्मी की शिद्दत से कहीं ये जल न जाए। काफिला हुसैनी पर पानी बंद किया जा चुका था। बस ये वो मकाम था जब हुर ने अपने बेटे की तरफ देखा जैसे बातिल से हक की तरफ सफर का फैसला कर चुका हो। हुर अपने बेटे के हमरा घोड़े पर सवार होकर झुकी हुई गर्दन और आंसुओं से तर चेहरे के साथ ख़याम हुसैनी की जानिब बढ़ा तो इमाम हुसैन उसका इस्तकबाल करने खुद बाहर आए। हुर ने फकत इतना कहा कि मुझे माफ कर दीजिए या अबा अब्दुल्लाह, मैं नहीं जानता था कि ये लोग आपको कत्ल करने पर आमादा हैं। इमाम हुसैन ने मुस्कुराते हुए हुर को माफ कर दिया। वो हुर जिसके दिल में ये नदामत हमेशा रह जाती कि करबला में अगर खानवादा रिसालत शहीद होगा तो उसकी वजह से, उस हुर के जख्मी होकर घोड़े से गिरने पर उसने अपना सर इमाम हुसैन के जानू पर पाया। इमाम हुसैन ने हुर से मुखातिब होकर कहा कि हुर, तुम इस दुनिया में भी हुर थे और आखिरत में भी हुर रहोगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा। उसके बाद अपनी माँ सैयदा फातिमा का रुमाल हुर की पेशानी पर बांधकर हमेशा के लिए हुर की हुर्रियत पर हुसैनी मोहर लगा दी। हुर बिन रियाही को इसी रुमाल जहरा के साथ दफनाया गया। दुनिया के कोने कोने में करबला के प्यासों का गम मनाया जाता है और जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। मगर मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था जिसके सबब उन्होंने अजीम कुर्बानी पेश की, ये समझना भी बहुत जरूरी है। दर्द दिल का बढ़ता है दूसरी मुहर्रम से, बेकरार होते हैं लोग शाह के गम से, लब पे आता है नाला फातिमा को पुसा दो। वाक़या करबला बक़ाए इस्लाम, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत का नाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ लुटाकर दीन मुहम्मदी को बचा लिया, जिसकी बदौलत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर आज़ान में ताबे क़यामत गूंजता रहेगा और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत का इजहार होता रहेगा। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। यजीद के तख्त नशीन होने के बाद उसने हाकिम मदीना वलीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेने का कहा। वलीद ने इमाम को दरबार बुलाया और बैत का तकाजा किया। इमाम ने फरमाया, हम खानदाने नबूवत हैं और मादने रिसालत हैं, हमारे घर पर
फरिश्तों की रफ्तो आमद रहा करती है और हमारे खानदान पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे घराने से शुरू किया और आखिर तक हमेशा हमारा घराना इस्लाम के हमराह रहेगा। लेकिन यजीद, जिसकी बैत की तुम मुझसे तवक्को कर रहे हो, उसका किरदार ये है कि वो शराबखोर है, बेगुनाह अफराद का कातिल है। उसने अल्लाह ताला के अहकाम को पामाल किया और बरसरे आम फस्को फजूर का मुर्तकब होता है। मुझ जैसा शख्स किसी सूरत उस जैसे शख्स की बैत नहीं करेगा। इस्लाम पर अब ऐसा मुश्किल वक्त आन पड़ा था कि वजूद इस्लाम खतरे में पड़ चुका था और अब इस्लाम को एक मददगार की जरूरत थी जो इस्लाम के कमजोर नहीफ बदन को अपने खून से कवियो तवाना कर दे और इस्लाम के जख्मों का मदावा करे, ताकि 1,24,000 पैगंबरों की काविशों का नतीजा ये दीन मुबीन इस्लाम कायम रह सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब यजीद की बैत करने पर आमादा नहीं हुए तो आपने मदीना से निकलने का इरादा किया, तो आपने अपने दस्ते मुबारक से हजरत मोहम्मद बिन हनीफा के नाम वसीयतनामा लिखकर उनको दिया, जिसमें आप क़याम का मकसद यूं बयान कर रहे हैं, मैं जो मदीने से बाहर जा रहा हूँ तो मैं न हुकूमत और तौसी पसंदी का ख्वाहा हूँ और न जुल्म फसाद का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए निकल रहा हूँ कि अपने जद की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर का फरीजा अंजाम दूं और अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बाप अली इब्ने अबी तालिब की सीरत पर अमल करूं। बैसा के मकाम पर हुर की फौज से खिताब करते हुए इमाम मजलूम ने फरमाया, ए लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी ऐसे सुल्तान जाबिर को देखे जो हराम खुदा को हलाल करार दे, अहद शिकनी करे, सुन्नते रसूल का मुखालिफ हो, लोगों के साथ जुल्मो तजावुज करे और ये उसके करतूतों पर ज़बानी तौर पर या अमली सूरत में कोई कदम उठाए तो खुदा के लिए सजावार है कि उसको दोज़ख में उस जगह करार दे जहाँ पर वो जालिम है। जिस दीन को क़यामे क़यामत तक बाकी रखने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ारे मक्का के मजालिम बर्दाश्त किए, उसी दीन को असली शक्ल में कायम रखने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी इस्तबदाद के खिलाफ क़याम फरमाकर जामे शहादत नोश किया। अपनी औलाद, घर बार, दोस्त अहबाब की कुर्बानी पेश करके बता दिया कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीली किसी सूरत मंजूर नहीं। जान जाए मगर शरीयत इलाही पर आंच न आए। जो मकसद शह मजलूम से नहीं आगाह वो जानता ही नहीं दीने मुस्तफ़ा क्या है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। आपने ये नहीं फरमाया कि मैं यजीद की बैत नहीं करता, बल्कि फरमाया मुझ जैसा भी होगा, यजीद जैसा भी होगा। ये दौरे तकरार होता रहेगा। उस वक्त मुझ जैसा उठेगा, अमर बिल मारूफ करेगा, इकदार की जंग लड़ेगा, यजीद जैसों को मनकरात फैलाने से रोकेगा, इन्हें दीनी इकदार मिटाने से बाज रखेगा। बस जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह उठे, हुसैनी इक़दार अपनाते हुए यजीदियत का मुकाबला करे, वो हुसैनी है। सिर्फ स्याह लिबास पहनने से ही इमाम के क़याम के मकासद पूरे नहीं होते। हमें अपने किरदार की भी हिजरत करना होगी, अपना किरदार बुलंद करना होगा। हुसैनी इक़दार को बचाने के लिए उनको पहचानना जरूरी है ताकि हम उन्हें अपनाकर हुसैनी बन सकें। खबरें और भी हैं मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चेयरमैन पेमरा ने केबल पर भारतीय चैनल चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने पेमरा रीजनल ऑफिस सखर का दौरा किया। फराइज में गफलत बरतने पर सीनियर फील्ड इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन पेमरा को सखर रीजन में केबल पर गैर कानूनी भारतीय चैनल्स दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पेमरा को बताया गया कि केबल नेटवर्क्स को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जा रहा है। गैर कानूनी चैनल्स दिखाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात कब्जे में लिए जा रहे हैं। चेयरमैन पेमरा से केबल ऑपरेटर्स के वफ्द ने मुलाकात की और दरपेश मसाइल से आगाह किया। कराची के इलाके मोमिनाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मदरसे के बच्चों पर तशद्दुद करने वाले असातिज़ा गिरफ्तार कर लिए। बच्चों पर तशद्दुद की वीडियो गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।
बच्चों पर तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कराची के इलाके मोमिनाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मदरसे के बच्चों पर तशद्दुद करने वाले असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया। कराची में मदरसे के बच्चों पर तशद्दुद की वीडियो गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और बच्चों पर तशद्दुद करने वाले असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया। वाक़ये की मज़ीद तहकीकात जारी है। सच न्यूज़ से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।